Good morning all students. I am Dr. Pinky Sani. Today discuss that about topic about the Masticomycotina, and last recording I discuss the subdivision of fungi Masticomycotina. So Masticomycotina is a subdivision of a fungus. Fungus is a total subdivided into 5 subdivisions, and first division is a Masticomycotina. So already discussed the Masticomycotina general characters and class and orders. Today topics the discuss Albugo. So BSc part first. Paper. Second, microbiology. Mycology and plant pathology. Today topics Albugo. Albugo. And second name of white rust. White rust of crucifer. Albugo, white rust of crucifer. Albugo is a fungus and very strong fungus. So disease cause of a Brassicaceae family and second name of crucifery family. So names of white rust of crucifers. So today's study of classification of Albugo. Classification of Albugo. So systematic positions of classifications like a division, subdivision, class, order, family, and last genus and others species. जीनस पर्टिकुलर जो है किसी डिजीज़ की हम स्पीसीज की बात करें जैसे मस्टर्ड तो उसके लिए लिखा जाता है हमारे द्वारा उसके अंदर स्पीसीज का नेम। यहाँ आप वन बात करते हैं केवल उसके स्पीसीज तक की उसके जीनस में। तो सो डिवीज़न के लिए अपन ने डिटेल से देख ही लिया पहले कि डिवीज़न जो है वो दो होते हैं फंगस के, एक माइकोटा और दूसरा होता है यू माइकोटा। तो यहाँ आएगा इसमें माइकोटा। सब डिवीज़न अपन ने पहले इसके लिए स्टडी की थी कि टोटल जो सब डिविजन्स हैं टोटल सब डिविजन्स ऑफ 5। सो फर्स्ट डिवीज़न एंड इम्पॉर्टेंट सब डिवीज़न ऑफ Masticomycotina and class Oomycetes. Oomycetes general characters are discussed to last recording. Oomycetes and order आएगा Personosporales. Family Albugogenesis and genus Albugo. So division of a mycota, subdivision Masticomycotina and class Oomycetes, orders Personosporales and family Albugogenesis and genus
albugo. So today discuss of albugo. Already discussed about mycota, eumycota, masticomycotina and different subdivisions, and total classes of 3 hypho, chytridiomycetes and oomycetes. So already discussed of oomycetes and total orders of oomycetes, total 4 orders of oomycetes and last orders of Personosporales. So albugo orders of a Personales and family of Albugogenaceae and genus of albugo. So detail and briefly details and discuss about the albugo. So general characters, उसके vegetative reproduction, vegetative structures and next topics habit and habitat of albugo. Habit and habitat of albugo. So कि एक एल्गी जो है, एक फंगस जो एल्बुगो है, वो किस तरीके के हैबिट्स एंड हैबिटेट्स के अंदर वो अपना लाइफ साइकिल या अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है. तो लिखेंगे इसमें हैबिटेट ऑफ एल्बुगो. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें हैबिट की. सिंपल सी बात है, हैबिट के अकॉर्डिंग जो है ये ऐसे प्लांट्स के साथ रहते हैं जिनमें क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं. अब फ्लावर तो बहुत सारी फैमिलीज़ में होते हैं, लेकिन उन फ्लावर्स में भी किस फैमिली में बिलोंग करते हैं ये, या किस फैमिली को अपने पैथोजन के रूप में, अपने होस्ट के रूप में क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, वो है ब्रेसिकेसी फैमिली. तो फर्स्ट हैबिटेट एंड हैबिटेट कैरेक्टर्स ऑफ एल्बुगो. फर्स्ट कैरेक्टर्स, इट इज प्रेजेंट ऑफ फ्लावर plant. It is present of flower plants. Flower plants of different belong to different families, but its flowers are belong to Brassicaceae family. So second points of Brassicaceae family and second name of Cruciferae family. So albugo symptoms cause of flowering plants, and flowering plants it is belong to Brassicaceae and Cruciferae family. And third points of it is a live on obligate parasite. It is belong to a live on obligate parasites, and parasites are 2 types, ectoparasites and ectoparasite and endoparasite. Parasites are 2 types, and obligate and facultative. Obligate and facultative types. It is live on other parasites, only one parasites formations. Facultative, it is optional like a rust of wheat. यानी कि अगर उनको अपना एक पर्सनल होस्ट नहीं मिलता है तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि वो होस्ट उसको नहीं मिला, जैसे रस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ वीट
अगर वीट प्लांट पे रस्ट को कोई पैथोजन नहीं मिलता, कोई होस्ट नहीं मिलता है, तो वो ब्लैक रस्ट जो है वीट प्लांट पे संक्रमण ना करके किस पे करती है, बारबरी की झाड़ियों पे संक्रमण कर देती है। तो वो उसके लिए एक ऑप्शन हो गया। क्या, अगर उसको वीट प्लांट नहीं मिला तो उसने अपना इन्फेक्शन किस पे किया, बारबरी की झाड़ियों पे। तो ऐसे पैथोजेंस तो क्या होते हैं, फैकल्टेटिव पैथोजेंस होते हैं कि उनके लिए और विकल्प होते हैं और ऑप्शन होते हैं। बट एल्बुगो जो है वो कैसा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। मतलब अगर उसको ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर अगर मिलता है तो वो केवल ब्रेसिकेसी फैमिली के ऊपर ही अपना संक्रमण करेगा, और अगर ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर उसको नहीं मिलता है तो वो इसके अलावा किसी दूसरे होस्ट के ऊपर अपना संक्रमण बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे भले वो रेसिस्टेंट स्टेज में चला जाए, चाहे वो उसकी डेथ हो जाए, चाहे वो बहुत लॉन्ग टाइम तक डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाए, लेकिन वो किसी दूसरे अल्टरनेट होस्ट पे अपना इन्फेक्शन नहीं करता है। इन्फेक्शन करेगा तो किस पे, केवल ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली पे। अब जो ये इन्फेक्शन करते हैं पर्टिकुलर इनके लिए एक ही होस्ट है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टो मीन्स आउटर, एक्टो मीन्स आउटर, एंडो मीन्स इनर पार्ट पे। यानी कि ये पैरासाइट्स जो है वो किस पे अटैक करें, आउटर सरफेस पे अटैक करें, और किस पे रहें, आउटर सरफेस पे रह करके ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करें। लेकिन जब ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, तो ये आउटर सरफेस पे इन्फेक्शन करते हुए कहाँ तक पहुँच जाते हैं, उस लीफ की, उस प्लांट की बॉडी के इंटरनल पार्ट तक भी पहुँच जाते हैं। तो जो एल्बुगो है वो कैसा पैरासाइट्स है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, और वो भी कौन सा, एंडोपैरासाइट्स है। तो हम इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स। क्या लिख सकते हैं हम इसको, ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि एक एल्बुगो जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट तो है ही है, साथ ही कैसा है, एंडोपैरासाइट्स भी है। तो इट इज़ लिव ऑन ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स। नेक्स्ट कैरेक्टर्स कि ब्रेसिकेसी फैमिली में भी कौन कौन से मेंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये अपना संक्रमण करते हैं, अपना इन्फेक्शन सबसे अधिक कोज करते हैं। तो अपन इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के फॉर्मेशन में कि ब्रेसिकेसी जो फैमिली है उसमें से मस्टर्ड है, मस्टर्ड के ऊपर अपना इन्फेक्शन करते हैं ये, कैबेज पे भी अपना संक्रमण करते हैं ये, और रेडिस पे भी क्या करते हैं ये, अपना इन्फेक्शन करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, एल्बुगो इट्स इन्फेक्टेड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, कैबेज प्लांट एंड रेडिस प्लांट्स, कि ये मस्टर्ड पे, कैबेज पे और रेडिस प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, अपना सबसे अधिक इन्फेक्शन जो है वो ये फैलाते हैं। तो ये जो हैं टोटल इनके हैबिट और हैबिटेट्स जो हैं एल्बुगो के, उनकी अपन बात करते हैं। तो पहला होता है कि ये फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर अपना इन्फेक्शन करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी ये ब्रेसिकेसी फैमिली और क्रूसीफेरी फैमिली में से लाइक एग्जांपल्स ऑफ मस्टर्ड, कैबेज एंड रेडिस आर इन्फेक्टेड बाय एल्बुगो रस्ट एंड इट इज़ ए लिव ऑन ऑब्लिगेट एंड एंडोपैरासाइटिक फॉर्मेशंस। तो ये है इसकी टोटल हैबिटेट और हैबिटेट। अब अपन बात करते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। सो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्बुगो। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये देखते हैं कि जो एल्बुगो का पार्ट है, जो एक फंगस है, उसका कौन सा पार्ट किस टाइप का होता है, वो देखने पर उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की होती है और किस टाइप से वो अपना इन्फेक्शन जो है वो करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग वेजिटेटिव
structure of albugo, vegetative structure of albugo। तो सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ, सबसे पहले अपन इसको ऐसे करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं, फिर इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। सो albugo and it is a present of different nucleus, cytoplasma, other particles, granules। So mycelium, nucleus, cytoplasma। So नॉन सेप्टेड कंडीशंस, तो अपन क्या कह सकते हैं इसको, ब्रांच्ड, एसेप्टेड कंडीशंस, एसेप्टेड विदाउट सेप्टा, without septa, and multi-nucleate, and cytoplasma are present in cells। Cytoplasma have a granules, oil drop, and glycogen। So albugo, it is a mycelium have a multinucleate and with cytoplasma have a granules, oil drops and glycogens। Mycelium separated without septa, so it is a unicellular but multinucleates। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसी है, ब्रांच्ड है, एसेप्टेड कंडीशंस है, माइसीलियम विद साइटोप्लाज्मा। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट्स, cytoplasma have a oil drop, granules and glycogen। And the next point, granules, very important part, and granules have a lomosoma, या lomosomes पार्टिकल्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके माइसीलियम पार्ट की, कि जो ये माइसीलियम है
इसकी आउटर सरफेस कैसी होती है। माइसीलियम को अपन देखते हैं बाहर से, आउटर सरफेस ऑफ माइसीलियम वेरी सॉफ्ट है। आउटर सरफेस ऑफ माइसीलियम soft thread like structures. Outer surface of mycelium soft and thread like structures, so have a cytoplasma, nucleus, granules particles, oil drop and glycogens. So different characters of vegetative structures of albugo. तो अपन आगे बात करते हैं इसके एल्बिगो के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बाद में अपन इसके रिप्रोडक्शन की, कि एल्बुगो जो है वो किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है। वैसे मोस्टली जो फंगस होती हैं उनके अंदर 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बट एल्बुगो जो है वो केवल 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन कंप्लीट करती है। एक रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड एक रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो अपन बात करते हैं आज ब्रीफली किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। सो नेक्स्ट हेडिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। Reproductions are 2 types. And the first types of asexual reproduction and the second type of sexual reproduction. Asexual reproductions and sexual reproductions. So asexual reproductions and reproductions. Asexual reproductions by sporangia. So make a spore and spore germination, formation of mycelium. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक एल्बुगो है वो अपना रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से कंप्लीट करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर किसके द्वारा कंप्लीट होता है, स्पोरेंजिया के द्वारा कंप्लीट होता है। स्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर क्या करता है, अपना जर्मिनेशन करता है और क्या बना देता है, माइसीलियम बना देता है। तो आज अपन जो है इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से और वो भी डायग्राम से एक बार समझते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। Asexual
रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन जब इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनके स्पोरेंजिया के बारे में, और स्पोरेंजिया में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन शुरू होता है एक माइसीलियम से। ये बना इसका माइसीलियम, जिसके बारे में अपन ने ब्रीफली डिटेल से देख लिया कि ये ब्रांच्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर खूब सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर साइटोप्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। ये माइसीलियम जो है सबसे पहले एक स्वेलन लाइक स्पोरेंजियोफोर बनाता है। इस स्पोरेंजियोफोर के अंदर कुछ क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो इसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर और इसे कहते हैं माइसीलियम। ये हुआ माइसीलियम, ये है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के अंदर क्या भरे हुए हैं, खूब सारे स्पोर। इस स्पोरेंजिया में क्या उत्पन्न होगी, स्वेलिंग, स्वेलन, क्या उत्पन्न हो जाती है इसमें, स्वेलन। जैसे ही इसके अंदर स्वेलन उत्पन्न होती है तो ये एक स्पोरेंजिया के फॉर्मेशन में बन जाता है। ये बनी इसके अंदर स्पोरेंजिया, इसका नाम है स्पोरेंजियोफोर। जैसे ही इसके अंदर ये स्पोरेंजियोफोर बनती है तो आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि इनके जो माइसीलियम है जब वो अपनी स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं तो इसकी स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हमेशा बेसिपिटल सीक्वेंस में होता है। एक होता है एक्रोपिटल सीक्वेंस, एक होता है बेसिपिटल सीक्वेंस। एक्रोपिटल सीक्वेंस का मतलब होता है जैसे वो बनेंगे वैसे वैसे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। बेसिपिटल का मतलब है कि पहले जो बनेगा वो सबसे लास्ट पॉइंट पे चला जाएगा, यानी कि टॉप पार्ट पे, तो वो होता है बेसिपिटल सीक्वेंस। जैसे ये स्पोरेंजिया है, इसने अपनी स्पोरेंजिया बनाई तो ये बनी इसकी स्पोरेंजिया और ये हुई बाहर से कवरिंग। जैसे ही इसमें दूसरी स्पोरेंजिया बनेगी तो ये इसकी कवरिंग और ये पूरी इसकी स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर में क्या भरे हुए हैं, खूब सारे स्पोर भरे हुए हैं। तो जो ये स्पोरेंजियो की एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये चैन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, एक डिस्क कंजक्टर के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, डिस्क कंजक्टर। ये पार्ट क्या कहलाता है, डिस्क कंजक्टर। ये डिस्क कंजक्टर जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, दो स्पोरेंजिया को जोड़ने का काम करता है। तो जैसे जैसे ये स्पोरेंजिया और बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे इन स्पोरेंजिया के अंदर मैचुरेशन जो है वो एक बेसल पार्ट से स्टार्ट होगा। जैसे अपन बात करें इनकी, ये बनी स्पोरेंजिया, ये नेक्स्ट स्पोरेंजिया के लिए इसमें कवरिंग बनी, ये इसकी नेक्स्ट स्पोरेंजिया, ये इसकी ये स्पोरेंजिया, और जैसे जैसे इसके अंदर और स्पोरेंजिया बनती जाएंगी वैसे वैसे ये इस तरीके से इसको कवरिंग करती चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या बना देती हैं, ये एक बेसिपिटल सीक्वेंस, बेसिपिटल सीक्वेंस। तो इस चैन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, बेसिपिटल फॉर्मेशन। इस बेसिपिटल फॉर्मेशन से क्या बेनिफिट होता है कि जो सबसे फर्स्ट टाइम बनी थी तो वो अब इस टाइम क्या हो गई, ओल्ड स्पोरेंजिया, क्या होगी, ओल्ड स्पोरेंजिया। और जो सबसे लास्ट सिंथेसिस हुई वो क्या होगी, एक न्यू स्पोरेंजिया। जैसे ही ये